let me discuss the very important questions from the exercise 10 point exercise 10.4. Very important topic is going on, that is question number 4, and all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, and I think all of you are getting the benefits from this channel. और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपकी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मुझे आशा है, क्योंकि एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन अगेंस्ट 1 or 2 marks only, okay, but I will use the condition of the cross product of the vectors, cross product of two vectors, okay. Already in my previous video I have discussed the conditions, observations related with the cross product or vector product of the two vectors. Let me take the left hand side first of all. See carefully how I will use this thing, left hand side. What is the left hand side? Vector A minus vector B, cross product with vector A plus vector B. Okay, let me take, multiply first of all by this vector in the second bracket, then it will be vector A cross product with vector A. Minus sign, then let me take positive. First of all, you multiply by vector A with each and every vector in the second bracket, A cross A, then plus vector A cross B. After that, by minus B vector into A vector, and then minus B vector and into B vector. Clearly listen. My dear student, you must have to keep in mind, I discuss in the observation of the cross product of two vectors, cross product of the same vector, that will be equal to 0. After that, A vector cross B vector. I will change the sign because I will make the direction opposite. Whenever the direction will be changed of the vector, suppose it is in the upward direction, if it will go in the downward direction will be changed. Here it is positive, I am going to change it. It is negative, I am going to change it. This is B cross A, I am going to write A cross B. Okay, and it will be 0. Therefore, I am going to write A cross B, it will be equal to minus B cross A as per the given condition. Okay, and it will be equal to twice vector A cross B. My dear student, it is a right hand side. Most important question I have discussed with you. This is the question number 4. Let me take one more question. Question number 5. Question number 5. But question number 5 I will write over here, because so that I will get the sufficient space to find out the solution of question number 5. Let me take question number 5. Find lambda and mu. Mu is given. If the value is given, my dear student, you see carefully, 2i plus 6j plus 27k. Cross product with the vector I plus lambda j and plus mu k. It is equal to 0 vector, my dear student. It is 0 vector. It is equal to 0 vector. But whenever the cross product you are going to find out, I told you in my previous videos, you must have to change the values in the form of determinant I, j and k. First of all, you see the coefficient of I, j, k, that is 2, 6 or 27. Similarly, coefficient of I, j, k in the second vector, 1, lambda and mu. It will be equal to the 0 vector. Don't forget, you must have to write 0 vector. Okay, let me take first of all for I. Leave this column, this row, don't touch. Then you write in the bracket 6 mu. Multiply 6 with mu, 6 mu. Minus 27 lambda. Minus j. Leave this column. जो j वाला कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए और इसको हॉरिजॉन्टल को. तो क्या होगा भाई, देखो इसको, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 2 mu, लेट मी राइट properly, 2 mu. After that 1 minus 27,
plus k. You will have to write k. K will be equal to what? Delete this column and this row. 2 lambda minus 6. It will be equal to the 0 vector. My dear student, you must have to see the value, how it will be possible, because I will write this 0 vector here. How you can write the 0 vector? 0i plus 0j plus 0k. My dear student, you must have these two vectors will be equal. If the corresponding components are same, then these two vectors will be equal. Otherwise no, these two vectors will not be equal. I का कोफिशिएंट क्या है भाई? I, that is, let me compare 6. Two vectors are, let me write, two vectors are equal. Two vectors, क्योंकि इसके बिना नहीं लिख सकते. Two vectors are equal if they are corresponding components are same, exactly same, then only these vectors will be equal. देखो इसके स्थान पे क्या रखेंगे? 0, 6 mu minus 27 lambda. It will be equal to 0. क्योंकि i की वैल्यू यहाँ पे, i का कोफिशिएंट 0 है, इधर i का कोफिशिएंट ये है. यहाँ पर j का कोफिशिएंट क्या है? j का कोफिशिएंट देख लीजिए भाई, minus 2 mu minus 27. It will be equal to j का कोफिशिएंट 0 हो गया. ठीक है? ओके, let me find out. 2 mu will be equal to 27 and mu will be equal to 27 by 2. 27 by 2. Substitute this value of mu. Otherwise, if you want to write, that you write 2 lambda minus 6 will be equal to 0. Lambda will be equal to 6 by 2. It will be equal to 3. Lambda will be equal to 3. Therefore, we got the value as lambda will be equal to 3 and mu will be equal to 27 by 2. Most important question, very important solution I have discussed with you. Let me take, my dear students, some more questions which are very important, generally asked in the examination. And let me take question number 8, most important question of this exercise. Technical question is there. Let me take this technical question also. Question 8. See in your NCERT book, if either vector A is 0 vector or B is 0 vector. Generally in the definition I have mentioned in my previous videos, vector A and B are non-zero, non-parallel. But here we have taken the 0 vectors as per the definition. Then what will happen? Then A cross B vector will be equal to 0 vector. Is the converse true? Is the converse true? Converse means if and only if, two ways implication. If and only if converse is true, then what will happen? Justify your answer. With an example. My dear student, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने डॉट प्रोडक्ट में भी डिस्कस किया था, दैट इज बाय सी केयरफुली. ओके, लेट मी टेक दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. A is a 0 vector, B is a 0 vector, their cross product will be 0. ओके, कन्वर्स का मतलब क्या होगा भाई? हम ऐसा वेक्टर लेते हैं जो 0 है ही नहीं, 0 वेक्टर ही नहीं है. देखते हैं कन्वर्स ट्रू है या नहीं है. If let me take vector A which is equal to I plus j and plus k. My dear student, I am going to take vector B also. जो आपको लेना ले लीजिए, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसी वेक्टर को. चलिए 2i plus 2j plus 2k. अच्छा, A का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हैं ना, 1 square plus 1 square and plus 1 square. It will be equal to √3, my dear student.
बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, 2 स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ I J K, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, that will be equal to how much? 4 plus 4 plus 4, that is 12. It will be 12. That means 2 root 3. These are no magnitude, that is not 0. That is why these are non-zero vectors. But you find out dot product of these two vectors. Sorry, cross product. Find out now. Find out the cross product A cross B will be equal to cross product. I told you already how you can find out the cross product I, J and K. Cross product of these vectors, let me take the value 1, 1, 1, 2, 2, 2. What will be its value? I. My dear student, delete this column, this row. 2, 2 minus 2. Minus J. J, delete this column, this row. 1 into 2, 2. 2 into 1, minus 2. Plus K. Delete this column and this row. 1 into 2, 2. And 2 into 1, 2. My dear student, it is 0 I minus 0, 0 J and plus 0 K. It will be equal to a 0 vector. We have proved that vector A cross B vector, it will be equal to 0 vector. Vector A and B, these are non-zero vector, but their cross product is 0. That is why converse is not true of this condition. You can write, therefore the converse is not true. Converse is not true. Most important question and very simple. Let me take some more questions, my dear student, which are very very important and given generally asked in the examination. अब एक थोड़ा सा थोड़ा बड़ा लूंगा क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 यू सी इन योर एनसीईआरटी बुक. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी टेक, आप किताब में देखिए अपनी. क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए यूनिट वेक्टर, इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका. इफ ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब माय डियर स्टूडेंट, इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी 1. यूनिट वेक्टर A makes an angle, makes angle, what angle? Pi by 3. मैं इसकी फिगर भी बनाऊंगा. pi by 3 विद I. देखिए I के साथ में pi by 3, ठीक है, और pi by 4 विद J. And acute angle theta with K. Acute angle means less than 90 degrees. You don't forget, less than 90 degrees, that will be acute angle with K. Then you will have to find theta. You will find theta and its component, and hence the components of A. देखिए यहां पर दिया है कंपोनेंट्स ऑफ ए. स्केलर कंपोनेंट भी हो सकते हैं और वेक्टर कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं. दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. क्वेश्चन में दिया हो फाइंड द कंपोनेंट्स, यहां पे दिया हुआ होता है दैट मे बी गिवन स्केलर कंपोनेंट, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट और फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट, दोनों में डिफरेंस होता है. ओके, लेट मी ड्रॉ द फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फिगर मैं पहले भी बता चुका आप लोगों को. सिमिलर काइंड ऑफ फिगर आई एम गोइंग टू ड्रॉ. सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ फिगर आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ. माय डियर स्टूडेंट, देखिए फिगर मैं आपको यहीं बना देता हूं. देखिए, ये देखिए, दैट इज ए फिगर. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और माय डियर स्टूडेंट जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ओके, लेकिन इसने दिया ना यूनिट वेक्टर. वो यूनिट वेक्टर कहां है? यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं. चलिए मैं इसको भी बना देता हूं. यहां देखिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये एक यूनिट वेक्टर है. ये वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए. ये पी पॉइंट है, दिस इज वेक्टर ए. और यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर में आई जे के कंपोनेंट क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, याद रखना. डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते.
तो यहां पर ये वेक्टर ए है, मैं इसको वेक्टर ए एज्यूम करूंगा। तो ये वेक्टर क्या करेगा, देखिए क्लियरली समझ में आ जाएगा आपके। ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर इसके साथ में अल्फा एंगल बना रहा है π/3, और यही एक वेक्टर वाई एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है π/3, और ये जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, यही थीटा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल। देखिए देख लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एंगल कितना है, एंगल बिटवीन π/3, और एंगल बिटवीन इसका एंगल देखिए, ये एंगल वाई एक्सिस एंड वेक्टर दैट इज π/4, और ये एंगल acute angle. This thing you must have to keep in mind. Then only you can find out the solution of the question, my dear student. Most important thing I am discussing with you, and try to understand. Let me take same figure I am going to draw. X axis, देखिए भाई यहीं पर बना देता हूं I, so that you will understand. And this is J, Y axis, and this is Z axis K, unit vector. और लीजिए यूनिट वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया भाई अभी, दिस इज P पॉइंट सपोज, और यही वो यूनिट वेक्टर है, और मैं इसको एज्यूम करूंगा अभी, यही यूनिट वेक्टर है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर ए, यही यूनिट वेक्टर है जो आई के साथ में कितना एंगल बना दिया इसने, π/3, दिस इज अल्फा एंगल, और यही पी है, ये बनाता है कितना π/4, हाउ मच π/4 विद जे, जे के साथ में, जे आई जे के यूनिट वेक्टर भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, अल्फा ये बीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा थीटा, यही है गामा, गामा एंगल। कौन बना रहा है भाई, ये यूनिट वेक्टर बना रहा है, ए यूनिट वेक्टर। इसी को देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट मी राइट सॉल्यूशन। लेट यू सी थीटा बी द एंगल, एक्यूट एंगल with which the vector make, which the vector unit vector, which vector A make with K, okay, rest thing I have represented over here. Let this vector A, unit vector, it is a unit vector, that will be equal to what, देखिए मैं पहले ही बता दिया आपको, that will be यूनिट वेक्टर, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, इट विल बी कोस अल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के। कोस अल्फा, कोस अल्फा, कोस अल्फा, देखिए कोस अल्फा कितना होगा भाई, कोस अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा एंगल, दैट इज हाउ मच π/3, कोस π/3, इसको एल भी बोल सकते हैं हम। कोस बीटा विल बी इक्वल टू कोस π/4, इट विल बी इक्वल टू m, एंड कोस गामा इज इक्वल टू कोस थीटा एन बी। दिस वेक्टर वी विल फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, ओके, दिस वेक्टर वी विल फाइंड आउट, एंड लेट मी टेक दिस थिंग, ऑल दीज थिंग्स यूजिंग, दोनों कंडीशन लिखूंगा, l² प्लस m² प्लस n² विल बी इक्वल टू 1। यही क्या है डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंटेड बाय l, l मींस कोस अल्फा, अल्फा मींस डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल π/3, π/4 और थीटा दिया हुआ है डायरेक्शन एंगल, ऑलरेडी आई हैव मेंशन क्लियरली ओवर हियर। चलिए अल्फा की l की वैल्यू कितनी है भाई, कोस स्क्वायर π/3 प्लस कोस स्क्वायर π/4 एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इट विल बी इक्वल टू 1। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, π/3 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा, इट विल बी इक्वल टू 1। एंड cos स्क्वायर थीटा, माय डियर स्टूडेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डायरेक्टली 1/4 and minus 1/2, its value is 1/4, its value will be 1/2। take the LCM 4, that will be 4 minus 1 minus 2, it is 1/4, okay, and cos theta will be equal to, let me take cos square theta, I am going to remove theta square from here, that will be 1/2, that will be 1/2 के लिए प्लस माइनस 1/2, माइनस
माइनस साइन होने से दैट विल बी एंगल मोर देन 90 डिग्री, बट इट इज एक्यूट एंगल। यहां पे लिख देता हूं थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, ओके, दैट इज वाई। देखिए भाई अब थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, चलिए इसी को मैं कंटिन्यू कर देता हूं यहां पर, cos थीटा 1/2 दैट इज cos π/3, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3 मींस 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज यहां पे cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा दैट इज थीटा। ओके, नाउ लेट मी यूज द कंडीशन। जो वेक्टर है हमारे पास, नाउ वेक्टर ए क्या है हमारे पास में, वेक्टर ए cos अल्फा आई प्लस cos बीटा जे एंड प्लस cos थीटा लिख देता हूं मैं यहां पर के। cos अल्फा cos π/3 आई प्लस cos π/4 जे एंड प्लस cos π/3 अभी निकाला मैंने के। इट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बट माय डियर स्टूडेंट इट्स मैग्नीट्यूड विल बी दैट इज गिवन थिंग, इट इज अ यूनिट वेक्टर। देखो यहां पे दिया हुआ है a is a unit vector, vector a is a unit vector। एक एक चीज समझाऊंगा यूनिट वेक्टर, सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1। तो वेक्टर क्या होगा, हमें तो वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं ना। वेक्टर के कंपोनेंट मैंने पहले भी बताया था, हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर a अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड into a unit vector। This thing you must have to keep in mind। कितना हो गया भाई, यूजिंग वेक्टर a will be equal to magnitude of vector a and a unit vector। Unit vector means in the form of direction cosine, okay, its value is 1। ये जो वेक्टर है हमारे पास, इसकी वैल्यू तो मैंने निकाल दी पहले, ये ली cos π/3 i प्लस cos π/4 j and plus cos π/3 k। You see its value cos π/3 that is 1/2 i plus 1/√2 j and plus 1/2 k। My dear student, components यहां पर लिखा हुआ है components of the vector a। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। अब यहां पे स्केलर कंपोनेंट में लिख रहा हूं, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या है भाई, देखो i का कोफिशिएंट 1/2, ये स्केलर कंपोनेंट है भाई, √2 और 1/2। दीज आर द स्केलर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, 1/2 i 1/√2 j 1/2 k। These will be the vector components, that is why don't forget, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन को गलत बना देती। तो ये स्केलर कंपोनेंट है माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव डिस्कस विद यू। ओके, लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस which are very very important and it will play the very important role। just to get the solution। My dear student, एक एडिशनल क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं which is very very important, which will play the very very important role, and it is your miscellaneous exercise question, because this such type of question generally asked in different types of competitive examinations, although it is very lengthy, but I want to take that question। But before that question, I will take the question number 2 from your NCERT book। Question number 2, let me take। क्योंकि आपके NCERT की जो एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चन लगभग पूरे हो जाएंगे। Let me take the solution of the question number 2 also। Question number 2, which is very important, find the unit vector। Find the unit vector। देखिए यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन में बार बार बता रहा हूं,
बी केयरफुल, चूंकि क्वेश्चन जरूर आता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर है भाई? वेक्टर ए प्लस बी, ये तो बहुत आता है एग्जामिनेशन में भाई, एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर आपको निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड प्लस 2k, वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस 2j एंड माइनस 2k। मैंने जितने भी क्वेश्चन इस तरह के लिए हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छी तरह से समझाया हमको। अब देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसने बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन कौन कौन से? फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, देखो ये वैल्यू है यहां पर, इसके और इसके परपेंडिकुलर, तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें दोनों वेक्टर का सम निकाल देते हैं सबसे पहले। तो भाई फाइंड आउट द सम, देखो यही ऐड कर देता हूं ना, दैट विल बी इजी, 4i प्लस 4j एंड देखिए भाई ये तो कैंसिल ही हो गया, प्लस 0। अच्छा इन दोनों को माइनस भी मैं यही कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी इजी फॉर अस। सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a, 2i, 3 माइनस i, और यहां पर तो 0 j हो गया, देखो इसमें से इसको माइनस किया तो प्लस 4k हो गया। वेरी इजी। नाउ आई विल ड्रॉ द फिगर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सेम थिंग आई एम गोइंग टू ड्रॉ, दीज आर द टू वेक्टर्स। ये तो वेक्टर हो गया हमारा a प्लस बी वेक्टर, देखिए, और ये हो गया वेक्टर a माइनस बी वेक्टर। ये एंगल थीटा है सपोज यहां पर, और ये यूनिट वेक्टर होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, दैट इज ए यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसके भी और इसके भी परपेंडिकुलर। नाउ क्या है भाई? यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ a माइनस बी, a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर। देखो भाई दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब बताया है, मैं बहुत बार बता चुका इस चीज को, फिर से बता देता हूं। देखो ये आपके दो वेक्टर हैं भाई, दीज आर द टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर है, ये तो a प्लस बी होगा, ये माइनस बी होगा, और ये है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, बोथ व्हाट? a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग द यूनिट वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट में मैंने बताया था फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। और हमें क्या करना है? अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, और उसका हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वन एंड दिस वन विल बी अलोंग विद यूनिट डायरेक्शन। ठीक से समझ लीजिए आप लोग। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा मैं, आई विल फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी लिखने में। चलिए मैं लिख देता हूं यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर जो हमारा है यहां पे इसी की डायरेक्शन में होगा। चलिए मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस बी वेक्टर। आप चाहें तो इसको c भी ले सकते हैं भाई, यू कैन एज्यूम इट c, वेक्टर c से, क्योंकि फिर इजी हो जाएगा आप लोगों को, वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। c वेक्टर ले लिया। चलिए अब मैं तो यहां पे इसकी केवल वैल्यू निकालूंगा। a प्लस बी देखिए क्या है भाई, i j एंड k, i j k 4 एंड 0। a माइनस बी के देख लीजिए भाई, क्योंकि दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, 2 0 एंड 4, सी 2 0 एंड 4। It will be equal to, my dear student, first of all you take I delete this column and this row, तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 0 माइनस j,
जे के लिए ले लीजिए, फिर वही 16 माइनस 0 प्लस के में देखिए डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, देखो 4 इंटू 0 0 0 माइनस 8 0 माइनस 8, तो ये वेक्टर आ गया हमारे पास 16i माइनस 16j एंड माइनस 8k। माय डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लीजिए, इसको मैंने c अज्यूम किया है भाई। देखिए इस c का मैग्नीट्यूड दोनों को लिखता जाऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b और a माइनस b, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड c, चूंकि c अज्यूम किया हुआ है। आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका भाई, देखिए 16 स्क्वायर, और यहां पर भी देखिए 16 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर और प्लस माइनस 8 स्क्वायर। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। 16 स्क्वायर you can write, that will be the value of it 256 plus 256 plus 64, and it will be equal to how much? That will be 576, and 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है माय डियर स्टूडेंट? 24, दैट इज 24। हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना ना, अब यूनिट वेक्टर निकालना तो इजी हो गया ना। यूनिट वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वन एंड दिस वन। चलिए अब इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम लोग। फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, देखिए एक एक चीज लिख रहा हूं, बोथ a प्लस b एंड वेक्टर a माइनस b वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर, इसके भी और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए इसको क्या लिख दूं भाई मैंने पहले बताया था, आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, मैं केवल भविष्य के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। यू मस्ट हैव टू टेक इट्स मैग्नीट्यूड a प्लस b वेक्टर, क्योंकि जिससे आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, इट्स मैग्नीट्यूड। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो c अपॉन c मैग्नीट्यूड। इसको पूरे को ना लिख करके एक बार एज्यूम कर लीजिए, वेक्टर a प्लस b क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस b इट इज इक्वल टू c। एक बार एज्यूम कर लीजिए, बाकी लिखते चले जाइए। ओके, हाँ जी बता दीजिए। अब इसकी जो वैल्यू होगी हमारी, इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट था हमारा, दैट इज 16i माइनस 16j एंड माइनस 8k, और डिवाइडेड बाई 24 हो गया 16 बाई 24। लेकिन आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंट थिंग, j माइनस 8 अपॉन 24k, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू। इसलिए मैंने फिगर को बचा के रखा हुआ जिससे आपको लास्ट में बताऊं। यूनिट वेक्टर, इसने बोला यूनिट वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वन एंड दिस वन। इसकी डायरेक्शन ये है, यदि हम इसको यूनिट वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। ये भी दोनों का परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। देन व्हाट विल हैपन? यूनिट वेक्टर विल बी, अब मैं यहां पे थोड़ा साइन चेंज करूंगा भाई, प्लस माइनस कर दिया मैंने, यहां पर भी प्लस माइनस कर दिया, क्योंकि एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव, प्लस माइनस लीजिए, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, और मैं क्या कर देता हूं यहां पे 8 से डिवाइड कर देता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2/3i माइनस 2/3j एंड माइनस 1/3k। और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे लिखना चाहे तो माइनस प्लस कर दीजिए, 2/3i लीजिए, 2/3i, और यहां पर देखिए नेगेटिव है भाई, तो ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा, 2/3। यहां पर तो पॉजिटिव था इसलिए प्लस माइनस कर दिया मैंने, यहां माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3। दैट इज द यूनिट वेक्टर। एक एक चीज बताया हूं इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव डिस्कस विद यू, एंड लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, चूंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका ये क्वेश्चन आपकी
मिसलेनियस एक्सरसाइज में है और इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और इधर उधर आ जाते हैं, इसलिए इसको तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, यू मस्ट हैव टू सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट मी टेक इट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सी इन योर बुक क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस में देख लेना भाई, लेट वेक्टर, आई विल टेल यू द वेरी, चूंकि इस क्वेश्चन में ना काफी कंडीशन यूज करनी पड़ती हैं और कंडीशन आपके याद नहीं है तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और मैं इसको इतना इजी बनाऊंगा आप याद रखेंगे। 7 one more vector is given, C vector. C vector is given 2i minus j and plus 4k. Find a vector. Find a vector. देखिए क्या वेक्टर निकालना, फाइंड ए वेक्टर d। और वेक्टर d निकालना भी हमको, वेक्टर d which is perpendicular, ये 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बट वन मोर कंडीशन इज गिवन, वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट विद डी वेक्टर इट विल बी इक्वल टू 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारी इंपॉर्टेंट कंडीशन बताऊंगा आप लोगों को, सो दैट यू विल नॉट commit the mistake to find out the solution of such questions. अब ये देखिए the vector d vector d it is perpendicular to both a and b। देखो फिगर बनाऊंगा so that you will understand, this is vector a and this is vector b, और मैं यहां पर वही सेम फिगर ले रहा हूं, this is vector b। अब मुझे ये बता दीजिए, this is vector a and this is vector b। vector a that is I plus 4j and plus 2k, यही वेक्टर है भाई। और वेक्टर b क्या है भाई, 3i minus 2j and plus 7k, यही वेक्टर b है। ये a के भी परपेंडिकुलर है तो b के भी परपेंडिकुलर है, तो a क्रॉस b किसकी डायरेक्शन में होगा, a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b is perpendicular to vector a and vector a cross b it is also perpendicular to vector b। देखिए शॉर्ट में लिख दिया भाई मैंने, वेक्टर a क्रॉस b, देखिए a क्रॉस b इसी के डायरेक्शन में, d की डायरेक्शन में, ये वेक्टर b है यहाँ पे इसी की डायरेक्शन में, और इसी की डायरेक्शन में चलिए और क्लियरली लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये भी वेक्टर हमारा इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए क्रॉस बी की भी डायरेक्शन और बी की भी डायरेक्शन, डी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। देन व्हाट विल हैपन इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, डायरेक्शन सेम होने से पैरेलल भी हो सकता है, कोलिनियर भी हो सकता है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, देन व्हाट विल हैपन, वेक्टर डी एंड ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर, दैट इज द गिवन थिंग, परपेंडिकुलर टू बोथ vector a and vector b। So what happened, vector d will be equal to lambda times of a cross b vector। this is the condition। ये स्केलर प्रोडक्ट में मैं डिस्कस कर चुका, आप लोगों को कई बार बता चुका। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, a क्रॉस b निकाल दीजिए, a क्रॉस b, व्हाट इज a क्रॉस b, i j and k, आई जे के, आई के कंपोनेंट वेक्टर ए में आई जे के कंपोनेंट देखिए भाई 1 4 2, कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, बी में देख लीजिए 3 -2 और 7। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, अदरवाइज चांसेस हो जाते हैं कि गलती होने के। डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, 28 plus 4, 28 plus 4, delete this column, this row, 4 into 7 minus negative to negative positive 4 minus j,
व्हाट विल हैपन, जे के लिए लिख देता हूं मैं यहां पर, देखिए माइनस जे, हाँ जी बताइए, डिलीट दिस कॉलम एंड दिस रो, 7 माइनस 6 एंड प्लस के -2 और -12, -2 4 into 3 -12 4k, it will be equal to how many, 32i and minus j and minus 14k. This is a cross b, we got a cross b vector. Now you find out the value of d. So vector d will be equal to lambda times of a cross b, and this is in the direction of this one, a cross b. Okay, lambda a cross b की वैल्यू लिख लीजिए भाई, 32i minus j and minus 14k. It will be equal to 32 lambda I minus lambda j and minus 14 lambda k. This is the vector d. It is vector d. We got the vector d. अभी तो एक कंडीशन और दी हुई है, मैंने बताया ना 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, एक कंडीशन और दी हुई है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स दैट इज 15. लेट मी टेक इट, इसको थोड़ा सा हटा दूंगा भाई मैं, लेट मी रिमूव इट using the given condition. C dot product with the D, it will be equal to 15. Value of C vector 2i minus j and plus 4k, and D vector is this one, 32 lambda I minus lambda j and minus 14 lambda k. It will be equal to 15. Yes. Let me remove this thing. Cross product, dot product you will have to find out. Dot product कैसे निकालते हैं? Only you multiply the scalar number of the scalar coefficients of I, j, k. I dot j will be equal to 0. I dot I will be equal to 1. Okay? तो इसको इसके साथ multiply कर दीजिए, 64. My dear student, 64 lambda, 32 into 2 minus I plus lambda, देख लीजिए, और यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस 14 into 4 56 lambda, it will be equal to 15. सारे कंपोनेंट आ गए हमारे पास में. Now you see, my dear student, you will have to see its value, because we will find out the value of lambda now. The value of lambda will be equal to, that is 65 lambda minus 56 lambda, it will be equal to 50. Okay, it is positive, it is negative. Now it will be, I think 9 lambda will be equal to 15. Lambda will be equal to 15 by 9, and that is 5 by 3. Lambda will be equal to 5 by 3, because we want to find out the vector d. You will have to find a vector d. Vector d is this one. Let me find out. Substitute the value of lambda. Substituting this value of lambda, therefore what will be, d is equal to, d की वैल्यू देखिए यहां पे आ गई, 32 into 5 by 3 I and minus 5 by 3 j and minus 14 lambda 5 by 3 k. Substituting the values, अब d वेक्टर आ गया देखिए हमारे पास में, we are getting vector d. कितना हो गया, मैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 15 6 by 3 I minus 5 by 3 j, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, minus 70 14 5 by 70 upon 3 k. My dear student, we got the vector d
It is very, very important result. Most important question generally asked for 4 marks or 6 marks in any kind of examination. Not only it is the solution of one question, it is the solution of so many questions combined, simple questions combined, then form such type of questions. Cross product of two vectors, unit vector, perpendicular to each vector A and B, dot product, all conditions, multi conditions you use and find out the solution of this question. My dear student, it is my request to all of you that you must have to share my videos, like my videos, subscribe my channel, so that the other students will be benefited, and press the icon so that my video will reach to you as soon as possible. And thank you to all of you.